Olympiads to presentation on chapter number 4, the ants, and this is part 2 of our presentation. So बच्चों, in our previous presentation we had learned about the poetess who has written this, Jane Taylor, and she is the same author who has written Twinkle Twinkle Little Star, and she is British. Okay, and in this presentation we will continue with the question answers as we have already completed the poem in our previous presentation. So let's go to the questions. हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन स्टार्ट विद कंसोलिडेट. तो कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से समझें, उसको ग्रैस्प करें. ठीक है, सो दिस इज व्हाट कंसोलिडेट मीन्स. A1, टिक द करेक्ट आंसर्स. सो आपको इसमें यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, द लिटिल ब्लैक एंट could not move the grain of wheat because. So tell me why the little black ant could not move the grain of wheat. Little black ant जो wheat का grain था उसे क्यों move नहीं कर पाई? One option is it was too heavy. The second option is he was too lazy. So what do you think? वो जो little black ant थी वो lazy थी क्या? इसके लिए वो उसको shift नहीं कर पाई grain of wheat को? No, it was too heavy. That is why he could not move. Next one, the neighbor did not help the little ant because. So tell me why the neighbor did not help the little ant. Option A is he was selfish. Option B is he was too small. So poem में कहीं पे लिखा हुआ है कि वो बहुत छोटा था इसलिए उसने हेल्प नहीं कर पाया? No, he was selfish. Okay. Next one, who helped the little ant? Who means कौन? So who helped the little ant? Grasshopper आया कहीं पूरी पोएम में? नहीं आया ना? So who helped? Another black ant. Okay. Now let's go to the next question. A2, answer these questions. What request did the ant make to his neighbor? So what request did the ant make? The ant, you know what did ant say? Go back to the poem. So ant requested the neighbor to help the grain down into his hole. I'll repeat. The little ant told the neighbor to help the grain down into his hole, right? मतलब क्या हुआ? लिटिल एंट ने नेबर को बोला हेल्प करने के लिए टू पुट द ग्रेन ऑफ व्हीट डाउन इनटू द होल. उसके बिल में लिटिल एंट के बिल में ग्रेन ऑफ व्हीट को डालने के लिए रिक्वेस्ट किया. ओके. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द लेसन द पोएट wants us to learn from this poem? So what lesson, क्या लेसन जो है पोएट wants us to learn? पोएट चाहती है कि हम इससे सीखें from the poem. So we should not be lazy and we should not be selfish. First of all, we should not be selfish and we should not be lazy to help others. This is what poet wants us to learn. Next one, think and answer. इसमें क्या करना है आपको? थिंक करना है एंड देन आंसर करना है. द ब्लैक एंट हेल्प द लिटिल एंट लिफ्ट द लार्ज ग्रेन ऑफ व्हीट. तो फाइनल क्या हुआ? जो ब्लैक एंट है उसने हेल्प किया. किसका हेल्प किया? लिटिल एंट का. किस में? टू लिफ्ट द लार्ज ग्रेन ऑफ व्हीट. वॉट वुड यू हैव डन? वॉट वुड यू हैव डन मतलब आप क्या करते. वॉट, यू नो वॉट मीन्स, राइट?
वॉट वुड यू हैव डन, मतलब आप क्या करते इफ़ द लिटिल एंट, अगर लिटिल एंट ने हैड आस्क्ड यू फॉर हेल्प. इफ़ द लिटिल एंट हैड आस्क्ड यू फॉर हेल्प, मतलब अगर लिटिल एंट ने आपसे हेल्प मांगी होती तो वॉट वुड यू हैव डन, आप क्या करते. एंड यू हैव टू आंसर वाई. सो इट डिपेंड्स. इफ आई वॉज देयर, I would have helped the little ant to lift the large grain of wheat down into his hole. Why? Because we should not be selfish, and we should always help others. Okay? And I think you also should do the same thing. आपको भी सेम चीज़ करनी चाहिए. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. लर्न इंटरेस्टिंग थिंग्स. तो आपको इसमें क्या लर्न करना है इंटरेस्टिंग थिंग्स में? द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर पीपल. इसमें मैसेज क्या है? वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर पीपल व्हेन दे आस्क फॉर हेल्प. तो व्हेन वी शुड हेल्प अदर पीपल when they ask for help. Many poems and stories have messages or morals. Okay, now you think of other stories where there is a moral or lesson for us. Okay, आप और स्टोरीज के बारे में सोचिए जहाँ पे कोई मोरल या लेसन है हमारे लिए. राइट. नाउ नेक्स्ट वन बड़ा इंटरेस्टिंग है. क्रिएट. सो इसमें क्या करना है हमें? B1. You know that adjectives are words that can be used to describe noun. तो एडजेक्टिव होते क्या हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर. अब हेयर कैसे हो सकते हैं? ब्लैक भी हो सकते हैं, कर्ली भी हो सकते हैं, ब्लॉन्ड भी हो सकते हैं. राइट. सो ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ हेयर्स. राइट. सो अगर कोई बोलता है कि माई हेयर्स आर कर्ली, सो हेयर माई हेयर्स, सो हेयर्स इज अ नाउन एंड कर्ली ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे बाल. कोई बोले कि माई हेयर आर वाइट, सो हेयर वाइट इज एडजेक्टिव. ओके. सो एडजेक्टिव होते क्या है? वो जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को. एडजेक्टिव्स कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक कंपैरिजन इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब नाउन बेटर. अब ये एडजेक्टिव जो है ये कंपैरिजन में भी यूज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई हेयर आर कर्लियर देन योर्स. मेरे बाल जो है आपके बालों से ज़्यादा कर्ली हैं. सो देन एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है? कर्लियर. और ये क्या है? कंपैरिजन कर रहा है बिटवीन आपके बाल में एंड आपके फ्रेंड के हेयर्स में. सो एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक कंपैरिजन्स. ओके. कंपैरिजन मतलब जहाँ पे आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू सी दिस गर्ल एंड हाउ आर द हेयर्स? द हेयर्स आर कर्ली. सो माई हेयर इज कर्ली. यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? कर्ली. ओके. कैसे बाल? कुंगराले, कर्ली. बट हाउ वुड यू डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ कर्ली योर हेयर इज़? बट कैसे पता चलेगा कि आपके बाल जो हैं कितने कर्ली हैं? सो अब उस केस में क्या है? हम थोड़े से कंपैरिजन करेंगे. फॉर एग्जांपल से माय हेयर इज़ एज कर्ली एज अ स्प्रिंग. तो यहाँ पे क्या है? मैंने बोला कि भाई मेरे बाल जो हैं उतने कर्ली हैं जितने की स्प्रिंग होती है. स्प्रिंग देखिए आपने, जो आप बॉल पेन में डालते हैं. ओके. सो एक तो बोल रहा है कि भाई मेरे बाल तो स्प्रिंग के बराबर कर्ली है. सो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे आप. राइट. सो माई हेयर इज़ एज कर्ली एज अ स्प्रिंग. नेक्स्ट वन, माई हेयर इज़ कर्लियर देन माई सिस्टर्स. यहाँ पे क्या है? मैंने फिर कंपैरिजन किया है. कंपैरिजन क्या है? कि मेरे बाल जो हैं मेरी सिस्टर से ज़्यादा कर्लियर हैं. तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं? माई हेयर इज़ कर्लियर देन माई सिस्टर्स. तो यहाँ पे देन की स्पेलिंग क्या है? THAN. THAN. ओके. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ देन? THAN. और नॉर्मली तब वाला जो देन होता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है? THEN. सो बी केयरफुल. दिस इज देन. जब कंपैरिजन करते हैं कि भाई मेरी सिस्टर के बजाय मेरे बाल ज़्यादा कर्ली हैं, सो देन वी यूज़ THAN कंपैरिजन के लिए. नंबर 3, माई हेयर इज़ द कर्लीस्ट इन आवर फैमिली. यहाँ पे तो क्लियर हो गया, सुपरलेटिव, मतलब आपसे सुपर कोई नहीं. राइट. सो मेरे बाल जो है पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा कर्ली हैं. सो देन यू विल से माई हेयर इज़ द कर्लीस्ट इन आवर फैमिली एंड दिस इज सुपरलेटिव. यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हुआ? सुपरलेटिव. सुपरलेटिव इन योर टर्म्स लाइक सुपर, इससे ऊपर कोई नहीं. राइट. इन द फर्स्ट सेंटेंस यू आर कंपेयरिंग योर हेयर टू अ स्प्रिंग. ओके. इन दिस फर्स्ट सेंटेंस, here both your hair and the spring are equally curly.
एंड दिस इज अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। जो ये वाला था ना, माई हेयर इज एज कर्ली एज अ स्प्रिंग, तो यहाँ पे जो है जो एडजेक्टिव वो कौन सा है, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। एंड इन द नेक्स्ट वन, in the second you are comparing your hair to your sister's hair, and this, okay, and that means you use the word curlier than to indicate this, okay, so your is more curly, और इसको कैसे बता रहे हैं हम, that is why we are using curlier than, okay। अगर आपकी सिस्टर के ज़्यादा कर्ली होते बाल तो होता कि my sister's hair are curlier than my hair, okay। so जिसके ज़्यादा कर्ली हैं वो पहले आएगा एज अ सब्जेक्ट। दिस इज द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो पहला क्या था, माई हेयर इज एज कर्ली एज स्प्रिंग, ये तो है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एंड माई हेयर इज कर्लियर देन माई सिस्टर्स हेयर, ये है कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो इसमें क्या करते हो, कर्ली जो था CURLY, उसमें हमने क्या है, वाई को हटा के हमने क्या कर दिया, IER लगा दिया, सो ये हो गया कर्लियर। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कंपेरेटिव में हम क्या करते हैं, ER लगा देते हैं। इन द थर्ड सेंटेंस, माई हेयर्स आर द कर्लीस्ट इन द फैमिली, तो इसमें तो आपने बोल दिया कि भाई मेरे बाल जो हैं दे आर कर्लियर देन एनीवन एल्स इन द होल फैमिली, सो दैट मीन्स द कर्लीस्ट। यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, माई हेयर इज एज कर्ली एज स्प्रिंग, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट वन इज कंपेरेटिव, माई हेयर्स आर कर्लियर देन माई सिस्टर्स हेयर, यहाँ पे क्या कंपेरिजन हुआ 2 चीज़ों का। एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव, जिसमें आप सबसे बेस्ट हैं या सबसे ज़्यादा जो है उस चीज़ में जो है सॉर्ट ऑफ नंबर 1 है। फॉर एग्जाम्पल कर्लीस्ट, किसके बाल सबसे कर्लीस्ट हैं, योर हेयर, सो दिस इज सुपरलेटिव फॉर्म। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, EST लगाते हैं। सो हमने क्या किया, CURLY, वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, I आएगा, और I के बाद EST, CURLIEST, कर्लीस्ट। तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव। क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द exercise. Fill in the blanks below using comparative and superlative form of the adjective given in the parenthesis. So parenthesis क्या होता है, ब्रैकेट, ओके, राइट। सो ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, parenthesis. Now remember to use the word then after the comparative adjective, और जहाँ पे भी comparative adjective वहाँ पे आपका यूज़ करेंगे THAN, ओके। So let's start. My mother makes dash गुलाब जामुन dash yours sweet, और यहाँ पे comparative है, तो अब क्या हो जाएगा, SWEET, sweet, ओके, स्वीट हो गया। एंड देन स्वीटर, तो स्वीटर में क्या होता है, गुलाब जामुन्स देन THAN देन योर्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंपेरेटिव किया, और कंपेरेटिव में क्या आता है, ER लगा देते हैं। तो माई मदर मेक स्वीटर गुलाब जामुन्स देन योर्स, यहाँ पे देन की स्पेलिंग क्या है, THAN। नेक्स्ट वन, फास्ट एंड कंपेरेटिव, ओके। सो यू राइट फास्ट, आपकी जो है एडजेक्टिव है, फास्ट में क्या लगेगा, फास्टर। सो यू राइट फास्टर देन आई डू, ये क्या है, फास्ट काम को करना है, और कौन सी फॉर्म लगानी है, कंपेरेटिव एडजेक्टिव, ओके। माई टीचर टेल्स डैश फनी सुपरलेटिव जोक्स, ओके, सुपरलेटिव फॉर्म लगानी है हमको फनी की। तो सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, FUNNIEST, हम इसमें क्या करते हैं, सुपरलेटिव में EST लगा देते हैं। सो माई टीचर टेल्स फनीएस्ट जोक्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, writers often use similes to create images in the reader's mind. Similes मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम एज लाइट एज अ फेदर। अब मैं एक्चुअली में इतना लाइट तो नहीं हो सकता ना, फेदर जैसा, पंख जैसा, बट इट्स जस्ट अ सिमिली, जिससे ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो करेक्टर है उसका वेट कम है, राइट।
So these sort of comparisons are called similes. So writers often use similes to create images in the reader's mind. A simile compares two dissimilar things. और simile क्या करता है, दो dissimilar चीज़ों को, जो अलग अलग चीज़ें हैं, dissimilar मतलब अलग अलग चीज़ें हैं जो सेम नहीं हैं, उनको कंपेयर करता है यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स लाइक अ बर्ड. अब यहाँ पे कंपेरिजन किसका हो रहा है, टू डिसिमिलर थिंग्स का. एक तो बर्ड है और एक बॉय है ही, तो दोनों डिसिमिलर थिंग्स हैं, बट जस्ट अ कंपेरिजन क्रिएट कर रहे हैं. उसका मतलब क्या है कि भाई ये जो है बच्चा, ही ईट्स वेरी लिटिल, बहुत कम खाता है. तो इसी को बोलने का एक तरीका है सिमिली यूज़ करते हुए, ही ईट्स लाइक अ बर्ड. तो ऐसा नहीं है कि वो बर्ड के बराबर एक दो दाने नहीं चुगता है. इसका कहने का मतलब है कि वो भी काफ़ी कम खाता है, जैसे बर्ड कम खाता है ना, सिमिलरली. ओके, सो दिस इज बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. So now why we are using this simile? To say that someone eats very little, just like a bird. Okay, so now next question is, choose a word from the box to complete the similes. और यहाँ पे हमें कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में, फीदर, माउस, बी एंड हिल्स, ये हमें यूज करना है. सो लेट अस सी. बिजी एज अ बी. तो आपने देखा है बी हमेशा बिजी रहती है, इधर उधर से अपने बी हाइव तक आने में और अपना जो है हनी बनाने में जो है बिजी रहती है. सो बिजी एज अ बी, बी डबल ई. ओके, स्मॉल एज अ माउस. ओके, इतना छोटा जितना माउस. लाइट एज अ फीदर, एफ ई ए टी एच ई आर. फीदर का मतलब होता है पंख. एंड ओल्ड एज द हिल. ओके, इतना ओल्ड जितना कि हिल. हिल नॉर्मली ओल्ड होती है ना, राइट? So now we will stop here, and in our next exercise we will continue with our next questions. So what you have to do, you have to revise all the questions on your own. Thank you.